another period of SS, standard 3rd, lesson 5, Thiruvananthapuram and Lucknow. In the previous class, we discussed the Lucknow and we completed the where is Lucknow situated, history of Lucknow, place to see. Now in this period, we discuss about the Lucknow today. What is we discuss in this period? The last topic of this chapter, Lucknow today. In the previous class, we discussed that Lucknow is lies on the bank of river Gomti, the tributary of Ganga. It is also called Awadh in ancient time. And then the first ruler of Awadh is Delhi Sultanate, then Mughal Empire, East India Company, and then British Raj. It is a multicultural city, Nawabi culture. It is popular for its culturally manner, poetry, music, different style of food, Urdu and Hindi literature, and it is also a capital of Uttar Pradesh. You have to remind this thing, Lucknow is a capital of Uttar Pradesh, and it is also a combination, mixture of ancient and modern agriculture and industries in Lucknow. Which are the place to see in the Lucknow? When we talk about the Lucknow, now you have to remind that about the Bara Imambara, Chota Imambara. You can see the picture of Asafuddollah in the book. It is Bara Imambara, also called Asafi Imambara. And why it is called Asafi Imambara? Because it was built by Nawab Asafuddollah. And you can see the both picture, Bara Imambara and Chota Imambara. And Lucknow has many gardens, Ambedkar Park, Savarna Jayanti Park, zoo, planetarium. You know the Kukrail Crocodile Park is also there, and the holy place Naimisharanya is also there. And when we talk about the Bara Imambara, you can remember of the Bulbulaya also. बुलबुलैया है, वहाँ गाइड के साथ जाना चाहिए, वरना आप खो जा सकते हो। गाइड आपको प्रॉपर गाइड करके पूरा इमामबाड़ा दिखाता है और बुलबुलैया भी दिखाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लखनऊ टुडे। लखनऊ टुडे, alongside the old buildings, new 20 or 25 story skyscrapers have come up. पहले के तो बिल्डिंग है ही पुराने जमाने के, पर अभी जो नए बने हैं उसमें 20-25 वाले के स्काई सेपर्स यानी कि आकाश को छूने वाली इमारतें भी बनी है। Sorry. Along with the rice, sugar mills and the agriculture belt, big industry units such as Hindustan Aeronautics and Tata Motors and so on have been set up here. राइस यानी कि राइस और शुगर मिल्स, खांड और चोखा, दोनों की एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का बेल्ट तो यहाँ पे ही है ही, और साथ में कई सारी बड़ी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पे है। उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और टाटा मोटर्स जाने जाते हैं। द इंडियन रेलवेज, जो भारत की रेलवे है, हैव सेट अप द रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। लेसन खत्म हो जाएगा, बाद में सब लेसन के फुल फॉर्म्स में लिखाऊंगी। लेसन में जितने फुल फॉर्म्स आते हैं वो भी आपको याद करने हैं, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी। तो ये भी RDSO का फुल फॉर्म है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ बनाया गया है, वो भी लखनऊ में है। तो लखनऊ में क्या है? अपार्ट फ्रॉम ओल्ड बिल्डिंग देयर इज अ स्काईस्क्रैपर्स, in new building there is a skyscrapers, sugar mills, rice mills, चावल चीनी की मिल्स, गुजराती में हम इसको चोखा और खांड बोलते हैं। चावल और चीनी की भी मिल्स है, एग्रीकल्चर बेल्ट है,
ओल्ड बिल्डिंग है, old buildings, then skyscrapers, big industries area, and agriculture belt is also here. किसकी खेती होती है यहाँ? गेहूं, सॉरी, चावल और शुगर की, यानी कि चावल और चीनी। Mills of rice and sugar, then क्या है? RDSO, RDSO is also here, Research Design Standardized Organization, जो कि भारतीय रेलवे कंपनी द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज चिल्ड्रन नोट डाउन दिस इन योर 0 नंबर बुक। Now the second paragraph of Lucknow today, topic of Lucknow today, second paragraph. Lucknow is famous for some other things too. The delicate chicken embroidery traditional done on fine muslin using a variety of stitches and jardosi and gold thread work. लखनऊ इसके अलावा कई सारी चीज़ों में माहिर है, उसमें खास करके चिकन एम्ब्रॉयडरी। अगर आपको पता हो तो आपकी मम्मी शायद चिकन के एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस पहनती है, जेंट्स के कुर्ते में भी चिकन की एम्ब्रॉयडरी आती है। वो वन टाइप ऑफ आर्ट है स्टिचिंग का। वो कौन से फैब्रिक पे बनता है? मुस्लिन यानी कि कॉटन फैब्रिक के पे बनता है। और जरदोसी जो कि गोल्ड कलर का जो थ्रेड होता है उससे जो बनता है उसको जरदोसी बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। बोथ आर पॉपुलर अब्रॉड टू एंड आर एक्सपोर्टेड। यहाँ भारत में और एब्रॉड यानी कि दूसरे सारे विदेशी कंट्री में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी ये बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट करना किसे बोलते हैं? जो भारत में बनी हुई चीज़ हम दूसरे कंट्री में बेचने के लिए भेजते हैं उसे एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। द कथक स्टाइल ऑफ डांसिंग, प्लीज अंडरलाइन दिस, द कथक स्टाइल ऑफ डांसिंग एंड नवाबी स्टाइल ऑफ कुकिंग वेराइटीज ऑफ बिरयानीज एंड कबाब आर ऑल्सो फेमस। और क्या प्रसिद्ध है? कथक स्टाइल ऑफ डांसिंग, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कथक स्टाइल डांसिंग, कथक डांस पिक्चर, एंड द नवाबी स्टाइल कुकिंग वैरायटीज। कौन सी वैरायटी? बिरयानी और कबाब यहाँ के प्रसिद्ध है। और यहाँ का चाट और पान भी प्रसिद्ध है। एंड एज आर द चाट एंड पान और चाट भी प्रसिद्ध
है, फेमस है। लखनऊ रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट मंडी फॉर मैंगोज एंड मेलन्स। लखनऊ में खास करके मंडियां हैं। मंडी किसको बोलते हैं? जहाँ सब्जी और फ्रूट का सेलिंग होता है उसको मंडीज बोलते हैं। फॉर मैंगो एंड मेलन्स, आम और तरबूज के लिए जानी जाती है। द लंगरा एंड द चूनसा वैरायटी ऑफ मैंगोज ऑफ द रीजन आर फेमस। कौन कौन सी आम वहाँ की प्रसिद्ध है? लंगरा और चूनसना। वैरायटी ऑफ मैंगोज ऑफ दिस रीजन आर ऑल्सो फेमस। हमें पता है कि गुजरात की केसर केरी जैसे फेमस है, ज़्यादातर गिर जूनागढ़ साइड, तळाजा साइड वो उगती है। उसी तरह लखनऊ में भी मंडी होती है मैंगो और मेलन की, और उसमें लंगरा और चौसना वैरायटी ऑफ मैंगोज पाए जाते हैं, वहाँ उगते हैं। तो इस टॉपिक में कौन कौन से मेन पॉइंट है? Famous for embroidery and Jardosi work. Famous for chicken embroidery. Chicken embroidery. एंड जरदोसी वर्क के लिए फेमस है। जरदोसी वर्क किसको बोलते हैं? गोल्ड थ्रेड से किया जाता है, उसे जरदोसी वर्क बोलते हैं। इसके लिए फेमस है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं सारे मटेरियल, जो कि एक कॉटन फैब्रिक पे बनाया जाता है, स्टिचेस के एक टाइप है। फिर किसके लिए प्रसिद्ध है? कथक स्टाइल डांसिंग। एंड बिरयानीज एंड कबाब्स। जैसे हमने पहले लेसन में किया था कि पंजाब इज फेमस फॉर मक्के की रोटी, सरसों दा साग, वैसे यहाँ की बिरयानीज और कबाब्स वो फेमस है। एंड लास्ट इज मंडी फॉर मैंगोज एंड मेलन। And two type of mangoes planted there, Langra and Chosna. Variety of mangoes of this region are famous. Lucknow today, second paragraph, famous for chicken embroidery and Jardosi or gold thread work. Also famous for Kathak style dance, biryanis and kebabs, and mandi for mangoes and melons. Mangoes and melons. Please children note down in your notebook.
Now the third paragraph of this topic, Lucknow today. Third paragraph. Lucknow has 6 universities. Some of the oldest schools such as the La Martiniere Boys School were set up here in 1845 and the Girls School in 1869. बॉम्बे और सब लेसन में भी मैंने समझाया था यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। जब स्कूल कंप्लीट करते हैं, स्कूल में जैसे बोर्ड होता है वैसे कॉलेजेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ होता है। तो लखनऊ में 6 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ है और सबसे ओल्डेस्ट स्कूल, पुराना स्कूल ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल एंड जो कि 1845 में बनाया गया था, जबकि हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। इंडिपेंडेंस डे कब 1947 को है। और गर्ल्स स्कूल, वहाँ जो गर्ल्स स्कूल है वो 1869 में बनाया गया था। लखनऊ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी एमंग द नॉन मेजर मेट्रोस। इट इज़ नॉट कॉल्ड प्रॉपर अ मेजर मेट्रोस। बड़े 4 सिटी हमने पढ़ लिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो बड़ा मेट्रो नहीं कह सकते, पर उसे आप ग्रोइंग सिटी के तौर पे ले सकते हो। उसके बाद हमने बेंगलुरु और हैदराबाद पढ़ा और आज हमने पहले के लेसन में, पहले के पीरियड में हमने तिरुवनंतपुरम और आज हम लखनऊ पूरा करेंगे। तो लखनऊ को हम बहुत बड़ा मेट्रो सिटी तो नहीं कह सकते, बट इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेंटर कह सकते हैं। ये इट इज रिटेन्स इट्स चार्मिंग अमीनाबाद बाजार लाइक दिल्ली चांदनी चौक। दिल्ली का जो चांदनी चौक है, इट इज़ फेमस फॉर फूड एंड इट्स सेरिकल्चर। उसके हिसाब से अमीनाबाद बाजार भी यहाँ पे है लखनऊ में, जो कि देखने लायक है। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्स द ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऑफ नवाबी अवध एंड द पैले ऑफ पोलाइटनेस। और खास करके जो लखनऊ की पॉपुलैरिटी है, नवाबी अवध, मैंने पहले भी समझाया कि लखनऊ को पहले अवध कहा जाता था, तो उनकी नवाबी स्टाइल यहाँ पे आप देख सकते हो। और उनका जो खाने के लिए और कहीं पे भी कोई भी बात होती है तो ऐसे बोलते हैं वहाँ के लोग, पहले आप, वो कर्टसी मैनर दिखाते हैं। जो पहले आप वाली पोलाइटनेस है वो लखनऊ में प्रसिद्ध है और लखनऊ उसके लिए प्रसिद्ध है। डिड यू नो बॉक्स? इट इज सेड दैट चिकनकारी was introduced by नूर जहां, वाइफ ऑफ एम्पेरियर जहांगीर। जो कि जहांगीर की पत्नी थी नूर जहां, उसने चिकनकारी की शोध की थी, उन्होंने पहले बनाया था नूर जहां ने। और मुगल एम्पायर है जहांगीर, हमने पहले पढ़ा कि लखनऊ पहले दिल्ली सल्तनत के अंडर था, फिर मुगल एम्पायर के अंडर था। तो मुगल एम्पायर में जहांगीर ने ये फाइंड किया था, जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने चिकनकारी वर्क को फाइंड किया था। इन दिस टॉपिक, इन दिस पैराग्राफ, कितनी यूनिवर्सिटीज है लखनऊ में? 6 यूनिवर्सिटीज। ओल्डेस्ट स्कूल कौन सा है? ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल। कब बना था? जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, 18th सेंचुरी 1845 में। एंड द गर्ल्स स्कूल
9 में बना था। फिर यहाँ का दिल्ली के चांदनी चौक के जैसा जो बाजार है, अमीनाबाद बाजार, it is also like Delhi's Chandni Chowk. It is also maintain the old world charm of नवाबी अवध, वो दिखाता है वहाँ का नवाब अवध स्टाइल की रहनी कहनी को। और फेमस फॉर लास्ट बट नॉट लिस्ट फॉर लखनऊ, किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पहले आप पोलाइटनेस के लिए प्रसिद्ध है। In the third paragraph, we learn that there is a 6th university in Lucknow, oldest school La Martiniere Boys School 1845 and the girls school in 1869, अमीनाबाद बाजार एंड पहले आप पोलाइटनेस, जिसके लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। एक बार पूरा टॉपिक फिर से। लखनऊ टुडे, alongside the old buildings, new 20 and 25-storied skyscrapers have come up, along with the rice and sugar mills of agriculture belt. Big industries units such as Hindustan Aeronautics, Tata Motors, so on have been set up. The Indian Railway have set up their research, design, standardized organization RDSO here. यहीं कई सारे ओल्ड बिल्डिंग है, उसके साथ 20 to 25 माले के स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग भी अभी बन गए हैं। राइस और शुगर की मिल है और इंडस्ट्रियल यूनिट लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड टाटा मोटर्स भी यहाँ पे है। इंडियन रेलवेज ने अपना रिसर्च, डिजाइन, स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप यहाँ पे किया है, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ किसके लिए फेमस है? लखनऊ इज फेमस फॉर सम अदर थिंग्स टू। The delicate chicken embroidery, traditional done of fine muslin using a variety of stitches, and Jardosi, the gold thread work. जरदोसी और चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। बोथ आर पॉपुलर एब्रोड टू, यहाँ भारत में तो प्रसिद्ध है ही है, पर एब्रोड से भी, फॉरेन के लोग भी इसको खरीदते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी, यहाँ से भी वहाँ बेचने के लिए भेजा जाता है। The Kathak style dancing and Nawabi style of cooking variety of biryani and kebab are also famous. क्या खाने में प्रसिद्ध है? बिरयानी and kebabs, chaat and pan. Lucknow remains an important mandi for mangoes and melons. The Langra and Chuesna variety of mangoes of this region are also famous. मंडी है तरबूज और आम की। Lucknow has 6 universities. How many universities? 6 universities. Some of the oldest schools such as La Martiniere Boys School
1845 and the girls school in 1869. लखनऊ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। आप उसको बड़ा मेट्रो नहीं बोल सकते दिल्ली मुंबई की तरह, पर आप उसको फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बोल सकते हो। और उसमें अमीनाबाद बाजार है जो कि दिल्ली की चांदनी चौक की तरह है, जो आपको वहाँ का नवाबी रहन सहन दिखाता है। एंड द लखनऊ इज फेमस फॉर पहले आप पोलाइटनेस। वी टेक अ फास्ट रिव्यू ऑफ तिरुवनंतपुरम एंड द लखनऊ। तिरुवनंतपुरम हमने पढ़ा था केरला की कैपिटल है। फिर वहाँ का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में पढ़ा था, गॉड अनंता जो कि स्नेक है, विष्णु उस पर रिक्लाइंस किए हुए है। फिर उसका लोकेशन कहाँ है, इंडियन पेनिनसुला में वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। 2 रिवर्स कर्मना और किली बहती है, और वेस्टर्न घाट जो तिरुवनंतपुरम में है वो ब्यूटीफुल लोकेशन तिरुवनंतपुरम को प्रोवाइड करता है। कोवलम बीच इंटरनेशनली फेमस फॉर सनबाथिंग, हर्बल मसाज एंड काटमरन। Then the history of Tiruvananthapuram, King Solomon Israel came up here by spices, sandalwood and ivory. Then it is the capital of Travancore. After that, Travancore and Kochi mixed, united in 1947, and then the Kerala state formed, and 1st November 1956 को केरला स्टेट बना, and then the Tiruvananthapuram become the capital of the Kerala. प्लेस टू सी में क्या है, कुथुरा मलिका पैलेस, म्यूजियम, नेपियर म्यूजियम। फिर आप श्री चित्र आर्ट गैलरी वहाँ देखने लायक है, और वहाँ कई सारे बॉटनिकल गार्डन्स भी है। एंड यू कैन सी द बोथ पिक्चर, नेपियर म्यूजियम एंड कुथुरा मलिका पैलेस। देन तिरुवनंतपुरम टुडे, तिरुवनंतपुरम आज के जमाने में कैसा है, स्पेशली हियर देयर इज अ टेक्नो पार्क है, उसमें जिसको आईटी पार्क भी बोला जाता है। कई सारे फॉरेन कंपनीज और इंडिया की ऑफिसेज वहाँ पे है। तिरुवनंतपुरम में खास करके स्पेस का कामकाज होता है, इसीलिए वहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एंड सम यूनिट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है। तिरुवनंतपुरम अभी मेडिकल टूरिज्म के लिए भी प्रसिद्ध है, वहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं। और कलाईरीपयट्टू, द केरला मार्शल आर्ट एंड द कथकली डांस, बोथ आर द फॉर्म फ्रॉम केरला एंड बोथ टॉट इन द तिरुवनंतपुरम। दोनों वहाँ पे तिरुवनंतपुरम में सिखाए जाते हैं। कलाईरीपयट्टू जो कि केरला का मार्शल आर्ट है, और कथकली जो कि केरला का डांस फॉर्म है, जैसे हमारे गुजरात का गरबा रहता है उसी तरह से। एंड देन लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे है, गोमती रिवर के किनारे है। पहले उसको अवध भी कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत, फिर उसके ऊपर रूल करने के लिए मुगल अंपायर आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश राज, एंड देन भारत इंडिपेंडेंस हुआ, तब लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश का कैपिटल बना। फिर लखनऊ में देखने लायक क्या है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। गार्डन्स में क्या है, अंबेडकर पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क, प्लेनेटेरियम, जू, कुकरेली, क्रोकोडाइल पार्क एंड द होली प्लेस नैमिषारण्य। और आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा लखनऊ टुडे, लखनऊ में कई सारे स्काई सेपल्स बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग्स, शुगर मिल्स, राइस मिल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स और इंडियन रेलवे के द्वारा जो बनाया गया है रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इधर है। लखनऊ इज ऑल्सो फेमस फॉर चिकन एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल वर्क, मुस्लिम क्लॉथ एंड जरदोसी एंड जरदोसी वर्क के लिए भी फेमस है, जो कि गोल्ड थ्रेड से बनाया जाता है। कथक डांस के लिए और बिरयानी और कबाब्स के लिए फेमस है, और यहाँ मंडी भी लगती
है। लखनऊ में 6 यूनिवर्सिटी है। सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल एंड द गर्ल्स स्कूल्स ऑल्सो देयर। एंड लखनऊ इज फास्ट ग्रोइंग सिटीज एंड इट इज अमीनाबाद बाजार लाइक दिल्ली चांदनी चौक। एंड द चार्म ऑफ द नवाबी अवध इज पहले आप पोलाइटनेस। हम यहाँ पे अपना ये लेसन कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, हार्ड वर्क्स करेंगे। नाउ दिस इज द होमवर्क टाइम। हमने लेसन 4 रिविजन चालू कर दिया था, उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर आए हैं। लेसन 4 राइट लेसन 4 क्वेश्चन आंसर one time in your 0 number book. This is your today's homework. Write lesson 4 question answer one time in your 0 number book. Children, this is bye bye time. We will meet again. Thank you. Have a nice day.